Hello students, welcome to the next session of biotechnology. In the previous class, we have already discussed about the general introduction of biotechnology, in which we have studied the different aspects of biotechnology, what is biotechnology, forms of biotechnology, types of biotechnology, and the principles related with the biotechnology, that is related with the modern biotechnology, in which two principles are there. Basically, these principles are related with the working pattern of biotechnology, and that is the chemical engineering, and next one is genetic engineering. In chemical engineering, we generally use the different organisms, different animals, plants and microorganisms in form of chemicals, like we obtain different vaccines, different enzymes, growth hormones, and different factors, protein factors and protein initiating factors we generally obtain from that organism that is related. So basically we obtain chemicals from that organism, or by the organism, for our welfare, for the welfare of human. That is chemical engineering. And what we do in the genetic engineering? In genetic engineering, generally we modify the organism, we manipulate their genes, we alter their genes, and then we produce the different transgenic plants and animals. And the basic technology that is related with the genetic engineering, that is recombinant DNA technology, that I have already the introduction I have given you in the previous class. Now today we will discuss the basic steps of recombinant DNA technology, because in genetic engineering the most prominent method that is used to produce the new, or that is used generally to obtain something good by the cells, by the tissues, and by the organism in form of different genes, that is the recombinant DNA technology. So what is clear, what is recombinant DNA technology? This concept of recombinant DNA technology first was proposed by Cohen and Boyer. What Cohen and Boyer do, they introduce the antibiotic resistance gene of Salmonella typhi. ये आपके लिए नया वर्ड नहीं है. Salmonella typhi एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियम है, और इनमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. और क्यों प्रेजेंट होते हैं वो भी हमको मालूम है, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ आर प्लाज्मिड इन देयर cell organization. So these antibiotic resistance gene, they isolate from the Salmonella typhi, and with the help of E. coli vector, that they vector obtained from the E. coli cell, with the help of these E. coli vector, they introduce these antibiotic resistance genes into the E. coli cell, Escherichia coli bacteria, and then they prepare multiple copies of these antibiotic resistance genes very successfully. So this idea finally comes that if we want to obtain something desired with the help of genes that is present in the different organisms, different animals or different plants, if something good is there, then you extract that good in form of genes or in form of DNA segment from that organism, and with the help of vectors or with the help of different methods, you transfer these DNA segment into the suitable host. अब suitable host क्या हो सकता है? तो जनरली हम बैक्टीरियम को suitable host के फॉर्म में सिलेक्ट करते हैं. आप ईस्ट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तो ये दो इंडिविजुअल ऐसे रहते हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन बहुत रैपिड होता है, तो जो प्रोडक्ट आपको मिलना चाहिए वो बहुत जल्दी जल्दी प्रोडक्ट आपको मिलना चालू हो जाते हैं. क्लोनिंग बहुत जल्दी जल्दी होती है, तो आप डिजायर्ड प्रोडक्ट अबंडेंट अमाउंट में ऑब्टेन कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस होस्ट ऑर्गेनिज्म. सो select suitable host in this method is the most important step. So we isolate the desire, and then we introduce into the host cell and multiply the DNA segment into the host cell, and then obtain our desire in form of juice, in form of syrups, in form of tablets, in form of specific hormones, in form of proteins like growth kinase जो है, kinase protein जो है वो हमने obtain किया है by this recombinant method. हमने artificial insulin obtain किया है by this recombination method. By DNA recombinant technology we obtain different growth inhibitors, we obtain different growth promoters, different protein regulators, different blood clotting factors we obtained by this recombinant DNA technology. So today we will discuss the steps of recombinant DNA technology. These steps in elaborate manner we will
discuss further, but today we will discuss the basic steps of recombinant DNA technology. So, on the basis of work done by the Cohen and Boyer, the basic steps are concluded as: first, you have to select the desired, identify the desired gene or desired DNA segment from the organisms from which you obtain. आप उस ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करिए, उस ऑर्गेनिज्म में उस डीएनए सेगमेंट को सिलेक्ट करिए जो आपके काम का है, जो आपके फायदे का है, जो आपके लिए वो बनाएगा जो आप नॉर्मली आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है या आपकी बॉडी में वो सिंथेसाइज नहीं हो रहा है. क्लियर? सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, डिजायर्ड डीएनए in desired organism. Clear? It is the first step of DNA recombinant technology. सबसे पहले आपको desired obtain करना पड़ेगा, desired सर्च करना पड़ेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा जो पैंक्रियाज है वो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन वो नॉर्मली नहीं बना पा रहा है, तो हम उसके लिए हमारे पास कोई इंटरनल कोई थेरेपी या कोई हमारे पास मेडिसिन उसके अवेलेबल नहीं है. आपके पास एक ही इलाज है कि फिर आप आर्टिफिशियल वे में उसको इंसुलिन प्रोवाइड करें. तो ये इंसुलिन हम कहाँ से ले, किसी दूसरे ह्यूमन से ले, कैसे ले, हमारे पास कोई तरीका नहीं है. तो फिर हम कैसे ये इंसुलिन जो है उसको प्रोड्यूस करें आर्टिफिशियल मैनर में. तो इसके लिए हमने क्या किया, एक ऐसे इंडिविजुअल को सर्च किया जिसका इंसुलिन प्रोडक्शन बहुत हाई होता है. पता चला रेट में और डॉग में इंसुलिन प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है. ये भी पता किया कि क्यों होती है, तो उनका जो डीएनए है वो इसके लिए मैसेज है कि उनका इंसुलिन जो है वो बहुत सफिशिएंट अमाउंट में, एक्स्ट्रा अमाउंट में बनेगा, इसलिए उनमें डायबिटीज जैसी कंडीशन आने की पॉसिबिलिटी कभी नहीं होगी. तो हमने इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई कर लिया. हमने पहला स्टेप किया वो इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई करा. ठीक है. अब आइडेंटिफाई करने के बाद हमने सेकेंड स्टेप लिया आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट. आइसोलेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट. हमने इंडिविजुअल से डीएनए सेगमेंट या फिर आप बोलो जीन जो भी डिजायर्ड है, जो हमको उससे लेना है, वो हमने उससे आइसोलेट किया. अब हम इसको बोल भले ही बहुत छोटे शब्दों में रहे कि हमने डीएनए सेगमेंट उस इंडिविजुअल से आइसोलेट कर लिया, लेकिन ये इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता है. आइडेंटिफिकेशन एक सिंपल प्रोसेस है कि हमने इंडिविजुअल को आइडेंटिफाई किया कि उसमें ये सब कुछ करने की कैपेसिटी ज्यादा है. तो क्यों है, तो कहीं ना कहीं उसके डीएनए में ये मैसेज है. लेकिन अगर हमको किसी इंडिविजुअल में से डीएनए आइसोलेट करना है, सो इट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस एंड दिस प्रोसेस रिक्वायर्ड कैटलिस्ट as enzyme. So different enzymes are there, those who related with the isolation of DNA segment from the desired cell or desired organism. पहले हमने ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करा, सेल में उसका प्लेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर है वो आइडेंटिफाई करा, क्योंकि क्रोमोसोम्स हमको वहीं पर मिलेंगे. फिर क्रोमोसोम को हमको ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको मालूम है डीएनए पैकेजिंग करता है तो उसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन का कवर चढ़ जाता है. तो वो हिस्टोन प्रोटीन को हमको डिसॉल्व करना पड़ेगा. फिर उसके बाद हमारे कहीं जाके डीएनए ओपन होगा. डीएनए ओपन होने के बाद हमको हमारा सेगमेंट किस जगह पर है, किस पोजीशन पर है, वो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. फिर वो जिस पोजीशन पर है उसके अकॉर्डिंग हमको एंजाइम्स यूज करने पड़ेंगे. डिफरेंट एंजाइम्स आर देयर फॉर दिस प्रोसेस दैट वी डिस्कस फर्दर, लाइक लाइगेज, प्रोटीएजेस and alkaline phosphatase, then the endonucleases, lysozymes. Different enzymes are there that is generally used in this process. So by with the help of different enzymes we isolate the DNA segment from the desired cell or from the desired organisms. Okay, in this method generally we require the enzymes. That enzymes we will discuss further. Okay, that is considered as the tool of recombinant DNA technology. Then third step, isolation of DNA segment from the organism. ये हमने ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट कर लिया. अब आइसोलेट करने का प्रोसेस आपका 12th क्लास का प्रैक्टिकल है. एक प्रैक्टिकल होता है 12th क्लास में, that is related with the isolation of DNA. आइसोलेशन ऑफ डीएनए करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी जिस भी पार्ट से, मान लीजिए आपको बनाना का डीएनए निकालना है, मान लीजिए आपको पी का डीएनए निकालना है, मटर का डीएनए निकालना है, तो हम क्या करते हैं, मिक्सर में उसका पेस्ट तैयार करते हैं. फिर उसके साथ हम एंजाइम्स डालते हैं, लाइक सेल्यूलोज डालते हैं, प्रोटीएजेस डालते हैं, और हमारे कुछ अगर फंगल सेल है तो काइटिनेज डालते हैं.
ये डालने के बाद हम उसको प्रॉपरली ग्राइंड करते हैं। ग्राइंड करने के बाद जो जूस तैयार होता है उसको हम टेस्ट ट्यूब में निकाल लेते हैं। टेस्ट ट्यूब में निकालने के बाद हम उसमें चिल्ड अल्कोहल डालते हैं, एकदम ठंडा अल्कोहल जो नियर अबाउट टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री के करीब होता है टेम्परेचर, वो अल्कोहल हम उसमें डालते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा डीएनए जो अपने सारे कंटेंट के साथ है, सारे सेलुलर कंटेंट उसमें रहेंगे। सेलुलर मींस हमारा जो न्यूक्लियोप्लाज्म का कंटेंट है, जो भी न्यूक्लियोप्लाज्म में है वो सब कुछ उसमें प्रेजेंट रहेगा। तो जब आप ये प्रोसेस करेंगे तो क्या होगा, उसका जो हिस्टोन है, उससे जुड़े हुए जो आरएनएज है, वो सारे कुछ उससे सेपरेट हो जाएंगे और आपको प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में वो ऊपर जो है एक कंडेंस्ड थ्रेड के फॉर्म में, एक लूप के फॉर्म में आपको डीएनए जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो ये डीएनए आपने आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब ये डीएनए तो आपने निकाल लिया एक लूप के फॉर्म में, लेकिन आपका जो सेगमेंट है, जो फ्रेगमेंट है, वो आपको क्लियरली विजिबल हो, उसको आप टेक आउट कर सके, इसके लिए आपके पास एक फर्दर मेथड होगी दैट इज रिलेटेड विद द सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट, सेपरेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट। अब आपको अपना डिजायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट जो है उसमें से लेना है। अभी आपको पूरा थ्रेड दिख रहा है लेकिन आपको डीएनए समझ में नहीं आ रहा है, आपको न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस समझ में नहीं आ रहे हैं। उसको समझने के लिए, उसको सेपरेट आउट करने के लिए आप अगला स्टेप करेंगे एंड दैट स्टेप इज रिलेटेड विद द जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल में समझ जाइए कि जो मीडियम होता है वो जेली लाइक मीडियम होता है एंड दैट मीडियम वाज प्रिपेयर्ड बाय द अग्रोस जेल। एक एक्वेटिक वीड होती है अगर अगर, उससे एक जिलेटिनस लाइक सब्सटेंस जो है वो ऑब्टेन होता है, उसको बोलते हैं अग्रोस जेल। ये नॉन रिएक्टिव रहता है, आप इसके ऊपर कोई भी अपना डिजायर्ड प्रोडक्ट अगर डाले, डीएनए डाले या कोई प्रोटीन आप आइसोलेट करना चाहते हैं वो अगर आप डाले तो ये इससे रिएक्शन नहीं करता है, तो नॉन रिएक्टिव नेचर का होता है। लेकिन ये एब्जॉर्बेंट का काम करता है, तो आपके जो डीएनए सेगमेंट है उसको पकड़ लेगा, होल्ड कर लेगा, तो हमारे डीएनए जो है, हमारा सेगमेंट जो है वो वहां पर अटक जाएगा इसके जेल के बीच में। एंड लाइक दैट योर डीएनए सेगमेंट्स आइसोलेटेड फ्रॉम द होल क्लस्टर दैट यू आइसोलेट फ्रॉम द सेल। जो सेल से आपने आइसोलेट किया है उसमें से आपको अपने डीएनए फ्रेगमेंट जो है वो दिखाई देना चालू होंगे, आपको विजुअल हो जाएंगे और उसकी वजह से आप उसको सेपरेट कर पाएंगे इजीली। दैट मेथड इज कॉल्ड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रोफोरेसिस आपको मालूम है कि कोई भी ऐसा केमिकल या कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें आयनिक पोलैरिटी है, जिसमें पोलैरिटी है, अगर आप उसको एक करंट मीडियम में अगर आप रख दे, चार्ज मीडियम में आप रख दे प्लस और माइनस के, तो उसके जो आयंस है वो एक दूसरे से सेपरेट होते जाएंगे। लाइक दैट पर्टिकुलर मैटर इज अवेलेबल टू यू बाय द करंट की वजह से वो आपको चार्जेस के फॉर्म में अवेलेबल हो जाएगा सेपरेटली, और ये जेल में अवेलेबल होता है, इसलिए इसको बोला जाता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। ओके, The next method after the gel electrophoresis, अब आप एक अगली मेथड के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट लाइए। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तभी जब हम एक एक इस टूल्स को यूज करेंगे तो हम क्यों यूज कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आएगा। क्लियर? तो पहला हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके हमारा फ्रेगमेंट निकाल लिया। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में ऐसी प्लेट होती है और वो प्लेट में अग्रोस जेल ऐसा लगा हुआ रहता है और आपके डीएनए फ्रेगमेंट आपको ऐसे आइसोलेट मिल जाते हैं। ठीक है, अब ये डीएनए फ्रेगमेंट आइसोलेट तो हो गए लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहे, तो आपको दिखाई दे इसके लिए इसको एक ऑरेंज कलर के स्टेन से कलर किया जाता है जिसको बोला जाता है इथिडियम ब्रोमाइड, ईटीबीआर। इथिडियम ब्रोमाइड से कलर करने की वजह से ये ऑरेंज कलर के सेगमेंट के फॉर्म में अलग ही दिखाई देने लगते हैं, चमकने लगते हैं। प्रोसेस को इल्यूशन बोला जाता है और वो जो डीएनए सेगमेंट है उसको हम यहाँ से आइसोलेट कर लेते हैं। अब आप ध्यान दीजिए, हमारा जो पूरा प्रोसीजर है डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का, वो सिर्फ एक छोटा सा प्रोडक्ट बनाने का या एक छोटा सा इंसुलिन का इंजेक्शन बनाने का या एक छोटी टैबलेट बनाने का हमारा पर्पस नहीं है। अगर हम एक छोटा छोटा काम करेंगे तो ये हमारी जो कॉस्ट है वो इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि हमारे लिए इकोनॉमिकली बेनिफिशियल प्रोसेस नहीं रहेगी। तो इसको इकोनॉमिकली बेनिफिशियल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट हमने ऑब्टेन किया है वो एक छोटा सा सेगमेंट है जिसको हमने एंजाइम की हेल्प से कट करके निकाला है। जबकि प्रोडक्ट तो हमको अबंडेंट अमाउंट में बनाना है, हमारी सारी पॉपुलेशन को वो प्रोडक्ट अवेलेबल हो, इजीली चीप प्राइस में अवेलेबल हो, तो हमको क्या करना है, इस डीएनए सेगमेंट, एक डीएनए सेगमेंट से हमको मल्टीपल कॉपीज बनानी पड़ेगी टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट इन लार्ज अमाउंट। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, अगला स्टेप फॉलो करते हैं एंड देन दैट नेक्स्ट स्टेप इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट।
आपका जो भी, कभी कभी ऐसा रहता है हमको डीएनए सफिशिएंटली अवेलेबल हो जाता है तो हमको ये स्टेप फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो डीएनए हमको अबंडेंट अमाउंट में अवेलेबल नहीं हो रहा है, इजीली अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, अगला करते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट। क्लियर? तो मल्टीप्लीकेशन करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी में एक टूल है, एक टेक्निक है, and that technique is called PCR. PCR is related with the polymerization of desired DNA segment, that is called polymerase chain reaction. ये पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में हम क्या करते हैं, जो साइकिल्स रहते हैं पॉलीमराइजेशन के वो रिपीट करते जाते हैं बार बार, और वो रिपीटेड साइकिल की वजह से आप इसकी मिलियन कॉपीज डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट की फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? अगर आपने जो पीसीआर साइकिल है, जो पीसीआर रिएक्शन है, इसको आपने 20 टाइम्स फॉलो करा तो आप 1 मिलियन कॉपी बना सकते हैं। 40 टाइम फॉलो करने में आप इसकी मिलियन से भी ज्यादा कॉपीज जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसको भी हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे, बट हाउ वी मल्टीप्लाई द डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट, that is the step of recombinant DNA technology in which single segment of DNA that is isolated from the desired organism, that is isolated from the visual segment, that can be multiplied again and again, and their poly copies were prepared with the help of polymerase chain reaction. Okay, then the next step after polymerase chain reaction, that is identification of suitable vector, selection of suitable vector, selection of, इसमें हम दो एक साथ डाल देते हैं, selection of suitable vector and host. क्लियर? ये भी हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। अगर आप वेक्टर के कॉन्सेप्ट को समझो तो आप याद करो, हम पढ़ते हैं बहुत सारी डिजीजेस ऐसी होती है, जैसे डेंगू होता है तो हम बोलते हैं डेंगू का वेक्टर एडिस मॉस्किटो है, फिर मलेरिया होता है तो हम बोलते हैं मलेरिया का वेक्टर फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है। तो यहाँ वेक्टर बोलने का मतलब क्या होता है, कैरियर। क्लियर? तो ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं, चाहे फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो बोलो चाहे एडिस मॉस्किटो बोलो, ये वो इंडिविजुअल है जो पैरासाइट्स लाइक प्लाज्मोडियम को हमारे बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में, जैसे इंजेक्शन जाता है हमारी बॉडी में, वैसे वो हमारी बॉडी में उसको इंजेक्ट कर देते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड वेक्टर, दे आर आल्सो कॉल्ड कैरियर। लाइक दैट वेक्टर और कैरियर वी आल्सो रिक्वायर्ड इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दीज आर द specific segments of DNA. These are the specific plasmids isolated from the bacterial cell, isolated from the yeast cell, and these vector DNA has the specific capacity to bind with the other DNA very easily. दूसरे DNA segment से ये बहुत easily bind हो जाते हैं, बहुत easily affinity show करते हैं। तो हम ऐसा वेक्टर सिलेक्ट करते हैं जो हमारे फॉरेन डीएनए जो हमने यहाँ से आइसोलेट किया है वो उससे इजीली कनेक्ट हो जाए, और कनेक्ट होने के बाद वो इजीली उसको हमारे होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कर दे। क्लियर? दैट्स व्हाई वी रिक्वायर्ड वेक्टर टू इंट्रोड्यूस आवर डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। Clear? And generally these vectors are also the specific segment of DNA that is isolated from the bacterial cell, that is obtained from the phage viruses, that is obtained from the yeast cell. So they are called the, sometimes they are also isolated from the bacterial cell, especially for the plant cell. They are related with the plant cell, and that is also called the genetic engineer of plants, that is Agrobacterium tumefaciens. ये एक ऐसा बैक्टीरिया है जो हमारे डिजायर्ड डीएनए को, जो हम चाहते हैं प्लांट को बनाना, वैसा सीधे वो प्लांट के अंदर लेकर जा सकता है। ये उसकी कैपेसिटी है, बिकॉज प्लांट्स हैव सेल वॉल। तो नॉर्मल जो हमारे वेक्टर डीएनए होते हैं वो उसमें इजीली इंट्रोड्यूस नहीं होते हैं, तो एक स्पेशल वेक्टर जो है वो प्लांट सेल के लिए यूज होता है, एंड दैट इज कॉल्ड एग्रोबैक्टीरियम tumefaciens specific bacteria, and these bacteria easily carry the desired DNA segment into the plant cell directly, and then plant cell modified and changed into the transgenic plant. So the concept of vector is clear. Vector is nothing
they are the carrier DNA molecules. Okay, then host, selection of suitable host, जैसे भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अगर आपको आपका डिजायर डीएनए सेगमेंट मल्टीप्लाई करवाना है तो आप उसको लेबोरेटरी में पेट्री डिश में रख के मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उसके मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको बायोलॉजिकल मशीनरी लगेगी। आप सीधे हमारी बॉडी में उसको इंट्रोड्यूस करके हम मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम अवेलेबल नहीं है। लेकिन कुछ इंडिविजुअल है जो किसी अदर इंडिविजुअल के डीएनए को अपने अंदर मल्टीप्लाई होने देते हैं, और हमने पढ़ा है 11th क्लास में, These individuals are generally bacteria जो फेज वायरस के डीएनए को अपने अंदर मल्टीप्लाई होने देता है। लाइटिक साइकिल, लाइसोजेनिक साइकिल, दोनों साइकिल फॉलो करता है। 11th क्लास में हमने ऑलरेडी सीखा है। तो ये कैपेसिटी, मल्टीप्लिकेशन की कैपेसिटी, बहुत इजीली रिप्रोड्यूस होकर मल्टीपल कॉपीज बनाने की कैपेसिटी, और किसी दूसरे फॉरेन डीएनए को अपने अंदर मल्टीप्लाई होने देने की परमिशन देने वाले इंडिविजुअल्स कॉमनली बैक्टीरिया और ईस्ट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। कॉमनली यूज्ड होस्ट सेल इज द बैक्टीरिया and commonly used bacteria is E. coli, Escherichia coli। तो होस्ट सेल हमको चाहिए हमारे डिजायर डीएनए को कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करवाने के लिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज फॉर्म करने के लिए। हमने यहाँ पर उसकी मल्टीपल कॉपीज बना ली है। मल्टीपल कॉपीज एक एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना के हमने एक होस्ट सेल में डाल दी। 50 होस्ट सेल में भी अगर हम डालेंगे तो वो 50 होस्ट सेल से हमको कितना डीएनए मिलेगा? तो हम क्या करते हैं, एक होस्ट सेल में डालते हैं। अब एक होस्ट सेल कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस होती जाएगी और अपनी बहुत सारी मल्टीपल कॉपीज बनाएगी। ऐसे बहुत सारे होस्ट में हमने इसको डाल दिया है तो बहुत सारी कॉपीज हमको मिलेगी। फिर वो कॉपीज को हम हमारे डिजायर्ड प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हैं। सो फॉर क्लोनिंग वी यूज द क्लोनिंग मींस एग्जैक्ट आइडेंटिकल कॉपीज बनाने के लिए जो मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम कॉपी बनेगी and that occurs inside the host cell. So selection of host cell is also very important process in the recombinant DNA technology. Okay, the next step is the formation of recombinant DNA. Clear? A formation of recombinant DNA is also catalyzed by the स्पेसिफिक एंजाइम्स। अब यहाँ पर एंजाइम की जरूरत क्या है वो अब आप समझिए। जनरली हम क्या करते हैं, मान लीजिए आपने अपना ये डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट अलग किया, फिर आपने ऐसा ही डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट वेक्टर से अलग कर लिया। क्लियर? दोनों के स्टिकी एंड क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको हमने ऐसी साइड से कट करा है जहां पर इसका जी ओपन एंड है, तो इसको हम ऐसी साइड से कट करेंगे जहां से इसका सी ओपन एंड है, तो बराबर जी और सी कॉम्बिनेशंस हो गए और ये स्टिकी एंड्स जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे। कभी कभी कुछ एंजाइम्स ब्लंट एंड को भी कट करते हैं, ब्लंट एंड से भी कनेक्शन हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन जनरली जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी फॉलो करते हैं तो यहाँ पर हम जो हमारे दोनों डीएनए हैं उनको उनके स्टिकी एंड से ओपन करते हैं। देन व्हाट हैपेंड विद द हेल्प ऑफ द अपोजिट एफिनिटी, दैट स्टिकी एंड्स बाइंड विद ईच अदर, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। देखिए ये है हमारा डिजायर डीएनए सेगमेंट, ये है हमारा वेक्टर डीएनए सेगमेंट। क्लियर? इनके 5'3' ओपन एंड अवेलेबल रहते हैं और अपोजिट न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की वजह से, अपोजिट नाइट्रोजनस बेसेस की वजह से ये आपस में जुड़ जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम लाइगेज। क्लियर? इनको स्टिकी एंड्स में, हमारे डिजायर डीएनए को स्टिकी एंड्स में काटने का काम किया है न्यूक्लिएजेस एंजाइम ने। 2 न्यूक्लिएजेस होते हैं, एक्सोन्यूक्लिएज, एंडोन्यूक्लिएज, डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तो इन्होंने स्टिकी एंड से कट किया, स्टिकी एंड को हमने लाइगेज एंजाइम की हेल्प से जोड़ दिया। लेकिन अब आप यहाँ पर देखिए ये जो नया डीएनए बना, इस नए डीएनए में 50% पार्ट हमारा डिजायर डीएनए है और 50% पार्ट हमारा वेक्टर या कैरियर डीएनए है। सो नाउ दिस डीएनए इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए। क्या बोला जाता है इसको? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। लाइक दैट रिकॉम्बिनेंट डीएनए is formed by the combination of 2 different DNA. One is obtained from the desired organism and another is obtained from the organism selected as a vector. उसको हमने as a vector select किया है तो उसका DNA हमने isolate कर लिया। Generally these DNA are the extra chromosomal unit in the bacteria. हम उसका क्रोमोसोम नहीं निकालते हैं, हम उसकी एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल यूनिट निकालते हैं। जनरली these extra chromosomal units are plasmid, cosmid, phasmid, इस फॉर्म में होती है। So these are the vector DNA. Now these fused DNA or hybrid DNA is called a recombinant DNA. Okay. Now next step that is related with the competent of host. आपने host को select कर लिया, host आपका desired जो भी था वो आपने identify कर लिया, उसको select कर लिया। अब आपके लिए next step क्या है कि आप अपने desired DNA segment को
उस होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करें। तो एक प्रोसेस तो ये है कि आपने वेक्टर के थ्रू उसको इंट्रोड्यूस कर दिया, क्लियर, इंट्रोडक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट सेल, ये हमारा नेक्स्ट स्टेप है। तो इस स्टेप में आपने वेक्टर डीएनए लिया है तो वहां तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वेक्टर डीएनए में तो कैपेसिटी है कि वो आपकी होस्ट सेल को, वहां पर जो लाइसोजाइम्स है उसको यूज करके वो होस्ट सेल को डिसॉल्व, उसकी मेम्ब्रेन को डिसॉल्व करके वो इजीली अंदर एंट्री ले लेगा। वहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है। लेकिन हर बार आपको सुटेबल वेक्टर अवेलेबल हो जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। कभी कभी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको सुटेबल वेक्टर अगर अवेलेबल नहीं होता है, आप अपना डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट आइसोलेट कर लिए, उसको मल्टीप्लाई कर लिए, उसकी मल्टीपल कॉपीज, पॉलीमर कॉपीज आपने बना ली, होस्ट सिलेक्ट कर लिया, सब हो गया, लेकिन अगर आपके पास वेक्टर सुटेबल नहीं है तो फिर आप उसको ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे। लेकिन प्रेजेंट जो मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी है उसने हमारे पास इसके भी टूल्स जो है वो अवेलेबल करवाए हैं। अगर आपके पास सुटेबल वेक्टर अवेलेबल नहीं है तो आप अलग अलग मेथड यूज करके, that is non-vector method, that is considered as a non-vector method in which you directly introduce your DNA inside the host cell without the vector, and these methods are generally the ionization, आप आयनाइजेशन करके कर सकते हैं, क्लियर, आप इसको हॉट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट से कर सकते हैं, क्लियर, फिर आप इसको जिन गन मेथड, that is also called बायोलिस्टिक मेथड। जिन गन मेथड, जैसे आप एक गन को इमेजिन करो, गन में हम हमारी बुलेट डालते हैं एंड देन वी फायर, ऐसी ही एक हमारी जो स्ट्रक्चर होता है, एक मशीन होती है एंड दैट इज कॉल्ड जिन गन। इस जिन गन में हम हमारा जो डिजायर्ड डीएनए रहता है उसको टंगस्टन या जो हमारी बहुत हैवी मेटल्स होती है, नोबल मेटल्स होती है, उससे प्लेटिनम, टंगस्टन ऐसा इसमें यूज करते हैं, उससे हम उसको कोट करके, जैसे बुलेट कोट होती है ऊपर से और अंदर कारतूस भरा हुआ रहता है, वैसे ही हम उसको कोट करते हैं एंड देन बाय द स्पेसिफिक प्रेशर फोर्स मैकेनिज्म वी डायरेक्टली फायर्ड these coated DNA inside the host cell, clear, and generally these method is followed in the animal cell। animal cells में अगर आपको डायरेक्टली अपना DNA इंट्रोड्यूस करना है तो उससे रिलेटेड होती है हमारी जिन गन मेथड, क्लियर। देन नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शन। माइक्रो इंजेक्शन, क्लियर। माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, हमारे जो निडल लाइक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें हम हमारा जो डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट है उसको भर लेते हैं और उसको सीधे हमारा जो सेल होती है उस सेल के न्यूक्लियस में सीधे हम उसको इंजेक्ट कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रो इंजेक्शंस, क्लियर। सो जिन गन मेथड, आयनाइजेशन, ट्रीटमेंट विद CaCl2। CaCl2 हमारा एक केमिकल है, इस केमिकल के ट्रीटमेंट से अगर आप जो भी होस्ट सेल है उसको कंटिन्यूअसली इस केमिकल से ट्रीट करो तो उसकी सेल वॉल जो रहती है वो परफोरेटेड हो जाती है, देन इजीली पोर्स आर प्रिपेयर्ड एंड देन इजीली योर डीएनए, डिजायर्ड डीएनए एंटर्ड इन द होस्ट सेल डायरेक्टली। वन मेथड इज आल्सो देयर एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन, इलेक्ट्रोपोरेशन में हम क्या करते हैं, आपको समझ में आ रहा है वर्ड को देखकर, करंट की हेल्प से, इलेक्ट्रॉन करंट की हेल्प से, चार्जेस की हेल्प से हम हमारी सेल मेम्ब्रेन में पोर्स प्रिपेयर करते हैं, छोटे छोटे पोर्स प्रिपेयर करते हैं और वो पोर्स से फिर हमारा डिजायर्ड डीएनए जो है वो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपोरेशन, क्लियर। सो ऑल दीज आर द मेथड्स बाय व्हिच यू इंट्रोड्यूस योर डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट इनटू द होस्ट सेल। वन मेथड इज विथ वेक्टर डीएनए, आप वेक्टर डीएनए के साथ उसको इंट्रोड्यूस कर दो। अगर आपके पास वेक्टर डीएनए अवेलेबल नहीं है तो फिर आप अदर मेथड्स पर जाओ और वो मेथड हमारी है आयनाइजेशन, दैट इज कॉल्ड चिलिंग ट्रीटमेंट, and then जिन गन method, that is also called biolistic method, and then next one is micro injection, and after micro injection next one is electroporation and treatment with the ions, ionic compound like calcium chloride. All these are the method by which you introduce your desired DNA segment into the host cell, okay. And the next step that is related with the, after this, the 8th step of recombinant DNA technology, that is called the formation of desired product in large scale। अब आप एक कॉन्सेप्ट यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हमने ये जो इतना पूरा मेथड किया,
ये मेथड से आपने क्या किया है, एक बैक्टीरियल सेल में आपका डिजायर डीएनए जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया है। अब जब बैक्टीरिया सेल मल्टीप्लाई होगी, उसका जो अंदर का रेप्लिकेशन सिस्टम चलेगा, तो आपका डिजायर डीएनए भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसके थ्रू आपको जो है आपका बैक्टीरियल कल्चर मल्टीपल कॉलोनी के फॉर्म में, मल्टीपल मेंबर के फॉर्म में, कॉलोनी के फॉर्म में आपको अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? लेकिन हमारा जो मेन मोटिव है यहाँ पर, हमारा मेन काम बैक्टीरिया बनाना नहीं है, हमारा काम है प्रोडक्ट बनाना। क्लियर? सो फॉर दिस होस्ट बैक्टीरिया we require the specific process, specific step to change these bacteria into our desired product, as well as our product should be available in large amount. आपको कुछ बैक्टीरियल सेल से आपका प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, तो आपको इसको लार्ज स्केल पर प्रोड्यूस करना है। सो नेक्स्ट स्टेप इज रिलेटेड विद द लार्ज स्केल प्रोडक्शन। 8th स्टेप, लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ डिजायर्ड डीएनए। क्लियर? डिजायर्ड डीएनए का लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे हम, और इसके लिए हम यूज करते हैं बायोरिएक्टर्स। दो टाइप के बायोरिएक्टर्स जो रहते हैं वो कॉमनली यूज होते हैं। वन इज स्पार्क्ड गैस टैंक एंड अनदर वन इज स्टील्ड गैस टैंक। स्टील्ड गैस टैंक जो रहता है वो हमारा कॉमनली यूज होने वाला बायोरिएक्टर है। बायोरिएक्टर में आप क्या करते हैं, इसके प्रोसेस को समझिए। आपने लेबोरेटरी में जो भी बैक्टीरिया के कल्चर तैयार किए, दैट इज ओनली बैक्टीरिया, दैट इज नॉट द प्रोडक्ट। उसको प्रोडक्ट आपको बनाना है, उससे एंजाइम्स आइसोलेट करना है, उससे प्रोटीन्स बनाना है, उससे आपको इंसुलिन का प्रोटीन बनाना है। जो भी आप बनाना चाह रहे हैं वो आप अब निकालेंगे। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, जो भी कल्चर आपने तैयार किया है उसको यूज करते हैं एज अ इनोकुलम, और वो थोड़ा सा इनोकुलम जो है वो आप बायोरिएक्टर्स में डाल देते हैं। फिर बायोरिएक्टर में आप कंट्रोल्ड कंडीशंस रखते हैं, टेम्परेचर कंट्रोल रखते हैं, प्रेशर कंट्रोल रखते हैं, ह्यूमिडिटी कंट्रोल रखते हैं, O2 का जो अमाउंट है उसको रेगुलेट करते हैं, CO2 का रिमूवल रेगुलेट करते हैं। देन प्रॉपर प्रोटेक्शन इज आल्सो देयर। आपका इनोकुलम कोई एक्सटर्नल फैक्टर, कोई वायरस या कोई अदर कंपोनेंट के कांटेक्ट में नहीं आए, ये सारी कंडीशन आप वहां पर डेवलप करते हैं। एज वेल एज यू प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट मीडियम आल्सो इनसाइड द बायोरिएक्टर। So with these all facilities inside these bioreactor, the enhancement of product occurs. आपका जो प्रोडक्ट है वो जो रहता है वो लार्ज स्केल में चेंज हो जाता है, लार्ज स्केल प्रोडक्टिविटी हो जाती है। बैक्टीरियल कॉलोनी जो रहती है वो अबंडेंट प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज हो जाती है। एंड देन व्हाट यू डू, यू आइसोलेट दैट स्पेसिफिक प्रोडक्ट दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड द बायोरिएक्टर्स एंड इट्स क्वांटिटी इज अबंडेंट। वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बना हुआ प्रोडक्ट होता है, कभी कभी तो इतना ज्यादा उसमें एक्टिविटी हो जाती है कि वो प्रोडक्ट बाहर आने लगता है। इसलिए हम एक पैक्ड बायोरिएक्टर यूज करते हैं, दैट इज कॉमनली यूज एज स्टील्ड टैंक बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर की भी क्वालिटीज होती है। दो टाइप के जो बायोरिएक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या क्या क्वालिटीज रहती है, आप किसको यूज करना ज्यादा प्रेफर करेंगे, ये हम जब इलॉबरेट करेंगे टॉपिक को तब हम डिस्कस करेंगे। बट यू कॉन्सेंट्रेट ऑन बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर जो रहते हैं एक ऐसे वेसल्स होते हैं मेटल के, नॉन रिएक्टिव मेटल्स के, जो नियर अबाउट 100 से 1000 कैपेसिटी वाले होते हैं। इसमें आप किलोग्राम के अमाउंट में जो है वो इनोकुलम जो है वो तैयार कर सकते हैं, प्रोडक्ट जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब प्रोडक्ट आपने उसका जो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर लिया, छोटे से इनोकुलम, छोटे से कल्चर से आपने इसको बहुत ज्यादा, इवन क्विंटल प्रोडक्ट में आपने इसको चेंज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप आता है डाउन स्ट्रीमिंग, एंड दैट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डाउन स्ट्रीमिंग। व्हाट वी डू इन द डाउन स्ट्रीमिंग, मैंने आपको बताया बायोरिएक्टर में आपने प्रोडक्ट जो है उसको अबंडेंट क्वांटिटी में बना लिया। अब आप क्या करते हैं, बायोरिएक्टर से वो प्रोडक्ट को निकालते हैं, दैट इज अवेलेबल इन फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। देन इन डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस यू रिमूव ऑल द अनवांटेड, आपकी मल्टीपल कॉपीज जो है वो प्रोटीन प्रोडक्ट के फॉर्म में या एंजाइम प्रोडक्ट के फॉर्म में बायोरिएक्टर में तैयार हो गई है। अब आपको क्या करना है, उसमें से जितना भी आपका अनडिजायर्ड है, जो भी बैक्टीरियल रिमेन्स है या जो भी आपने अंदर मटेरियल यूज किया था उसका जो रिमेन्स है, जो भी आपका बैक्टीरियल शेल का जो रिमेन्स है, वो सब कुछ आप वहां से प्यूरिफाइड करते हैं। सो इन फर्स्ट स्टेप ऑफ डाउन स्ट्रीमिंग यू डू सेपरेशन, आफ्टर सेपरेशन purification,
प्यूरिफिकेशन ऑफ योर प्रोडक्ट, आप उसको प्यूरिफाइड करते हैं। प्यूरिफाइड करने के लिए आप अलग अलग केमिकल्स यूज करते हैं, प्यूरिफाइड करने के लिए आप अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं, प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स हमको मालूम है। देन वी प्यूरिफाइड एंड देन वी प्रोसेस्ड आवर प्रोडक्ट, फिर हम हमारे प्रोडक्ट को प्रोसेस्ड करते हैं। प्रोसेस करने का मतलब क्या है, मान लीजिए आपको प्रोटीन आइसोलेट किया आपने, प्रोटीन प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्ट बनाया, तो आप उसको प्रोटीन के फॉर्म में, जूस के फॉर्म में आइसोलेट कर लेंगे, आप उसको सिरप के फॉर्म में आइसोलेट कर लेंगे, आप उसको ड्रिंक के फॉर्म में आइसोलेट कर लेंगे। ओके, अगर आपने इंसुलिन बनाया है तो आप उसको लिक्विड फॉर्म में आइसोलेट कर लेंगे, आप उसको लिक्विड निकाल के उसको टैबलेट फॉर्म में चेंज कर लेंगे। क्लियर? सो ऑल दीज आर कॉल्ड द प्रोसेसिंग। आप उसका प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करने के बाद आप उसका टेस्टिंग करेंगे। टेस्टिंग मींस आपने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसका क्वालिटी टेस्टिंग होगा। क्वालिटी टेस्टिंग के बाद टेस्टिंग जो एक प्रोसेस होता है, अभी जैसे हम कोरोना वैक्सीन बना रहे हैं वो एक टेस्टिंग करेंगे, यहाँ पर हम उसका प्रॉपर टेस्टिंग करेंगे, उसका परसेंटेज प्रोपोर्शन जो भी हम चाह रहे हैं, वो प्रोटीन उतना आ रहा है कि नहीं, इंसुलिन में जो अवेलेबल होना चाहिए वो उतना है या नहीं, अल्फा बीटा चेन प्रॉपर है या नहीं, ये सारा कुछ जो है वो टेस्टिंग में करेंगे। कोई एब्नॉर्मलिटी तो नहीं आ गई, कहीं म्यूटेशन तो नहीं हो गया, ये सारा टेस्टिंग करने के बाद हम उस प्रोडक्ट को सेलिंग के लिए निकाल देंगे। क्लियर? उसको हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम उसको प्रूफ करवा के, हम उसको लेबल करवा के हम उसको सेलिंग के लिए निकाल देंगे। Clear? So all these are the steps, common steps that is generally followed in the recombinant DNA technology. All these steps are there and these steps are very complicated. हमने इसको बहुत simple way में अभी discuss किया है, but in these steps we discuss the different methods. If we discuss the plasmid, different type of plasmid, polymerase chain reaction we will discuss in the elaborate manner in this chapter. So in next session we will discuss the different tools like enzymes, PCR, plasmids, different DNA, vector DNA, downstreaming, the enhancement of product that is obtained by the recombinant DNA technology, use of bioreactors, type of bioreactor, we discuss in the next session of biotechnology chapter. Okay.